से दो कौड़ी के इतिहासकार जावेद अख्तर जैसे लेखक बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचाया था भारत को। आगे वो ये भी बताते हैं कि उसने सबके लिए एक दाम हो और एक एमएसपी तय हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए। इसके लिए उसने कदम उठाए थे, रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का काम किया था। ये इतना झूठ है, इससे ज़्यादा कुछ झूठ हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं ये सब कि शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ये अपनी रियासतों तक, इनके जब तक वो अंग्रेज नहीं पहुंच गए तब तक, या दुश्मन नहीं पहुंच गया तब तक इन्होंने जहमत नहीं उठाई किसी चीज़ के लिए लड़ने की। इसलिए ये देशभक्त थे, ये कहना गलत होगा। इतने फ्लॉड आइडियाज़ हैं ये, और इन आइडियाज़ ने यूथ को इतना मिसगाइड किया है जिसका कोई हद नहीं। ये वीडियो थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में अभिजीत चावड़ा जी बोलेंगे, जो कि खुद एक साइंटिस्ट और इतिहासकार हैं, इतिहास की गहन समझ है उनको। I read in an article that Khilji did not resist the Mongols to save India's culture and civilization. He did it to save himself. But that is true for even Shivaji, Rana, P, or Lakshmi Bai thought. Okay, so first of all, there is this wonderful misconception that Alauddin Khilji defeated Chinggis Khan several times. So that is not the case. Chinggis Khan died at least a few decades before this guy Khilji was born. And what Khilji did was he repulsed some half-hearted Mongol invasions, which were not from the main Mongol empire. There were some half-hearted incursions into India by some raiding parties or some reconnaissance groups. Those were not full-fledged invasions of India. And like you said, he was not doing anything for India's history and culture or civilization. He was doing it to safeguard the empire he had amassed for himself, the kingdom, the Delhi Sultanate. It was all under him. It was Indian territory that he was occupying, that he was extracting from and enriching himself from. So that was what he was trying to protect. He was trying to protect his investment. He was trying to protect the golden goose that he had captured. That is what Khilji was doing. He was not doing anything for the people of India. He was oppressing the people of India, right? So he resisted the Mongols, these half-hearted, small-scale Mongol incursions, to protect his investment and to ensure that he remained rich and that he remained a king. Now, is it true for Shivaji and other people? I am sorry, I completely disagree. Shivaji did whatever he did for the people of India. So there is something called leadership. What is leadership? Leadership is service of a limited number of people. It is called service of a constituency. You need to know specifically who your constituency is, and you serve only those people. You don't serve the whole world. Leadership is about serving a small number of people or a limited number of people. And the people Shivaji served were the people of India. He re-established Hindavi Swarajya over India. He freed, he liberated India, most of India, much of India, from the foreign occupiers. And after his demise, his descendants or his successors went even further, and at its greatest extent, the Maratha Empire went all the way from parts of southern India all the way into parts of Afghanistan, and it liberated India from the Turks, from the Turco-Mongols, the so-called Mughals. So they did not do it. I mean, there is no record in history of the Marathas extracting wealth from the Indian people. They were not exploitative in any way whatsoever, right? They did launch raiding parties and loot cities like Surat, for example, but Surat was under the Mughals at the time, and they did not loot the population, the common people of Surat. They looted the merchants, and those were the benefactors of the Mughals and the Mughal treasury. And so that's what the Marathas did. Whatever they did was to liberate the country and the people from the outsiders, from the foreigners, from the occupiers, from the oppressors. And the same goes for Lakshmi Bai. Lakshmi Bai was the queen of Jhansi. Her job was to serve the people of Jhansi, and that's what she did. If she had become the queen eventually of a larger region, she would have served them too. But as the queen of Jhansi, it was her duty to serve the people of Jhansi, and that's what she died. That's what she did until her dying breath. So one has to look at things in the correct perspective. Leadership
is about the service of a limited and specific group of people. If you are the king or queen of a certain region, your primary duty, your primary objective is to ensure the long term security and prosperity. Once you become the king or queen of a larger region, you will take care of all of them. So Shivaji became eventually the king of great parts of India, of much of India, and his successors had a much larger empire, and they served everybody, all the Indians of that Maratha empire. So that is what it is. Khilji did it for himself. The Marathas did not do it for themselves. They did not enrich themselves at the expense of the Indian people. Neither did Rana P, whoever that is, or Lakshmi Bai. So that is the जी difference. चावड़ा जी बताते हैं कि शिवाजी ने सूरत में लूटपाट की थी। इस चीज़ का लोग हवाला देते हैं कि उन्होंने तो लूटा था सूरत में जाकर के, जैसे कि बाकी आक्रांता भी लूटते थे। तो भाई उन्होंने किसको लूटा था? उन्होंने क्या आम पब्लिक को लूटा था? उन्होंने उन लोगों को लूटा था जो मुगल के बेनिफैक्टर्स थे, मतलब जो फ़ायदा पहुंचाते थे मुगलों को, वो चाहे हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे हो। आप जब एक बार युद्ध भूमि में उतर जाते हो, खास करके मुगलों और इन आतताइयों के खिलाफ, तो उसके बाद आप इंसानियत को उठा करके फेंक दो। महाराणा प्रताप ने भी क्या किया था कि जो मुगल सल्तनत के लिए जहाँ से धान जाता था, ऐसा कोई भी पट्टा, कोई भी ज़मीन उनके साम्राज्य में जो थी, उसके किसान को नपवा देते थे वो अच्छे से। तो ये अपनी तरफ लॉयल्टी और अपनी प्रजा के लिए काम करने का एक तरीका होता है। और उस वक्त ये सब टैक्टिक्स होती थी कि अगर आपको सामने वाले की, दुश्मन की सप्लाई लाइन काटनी है, तो आप जब रिट्रीट करो या जब आप जीतते चले जाओ, तो आप गांव के गांव लूटते तक चले जाओ, ताकि उनको संसाधन ना मिले सामने वाले को, खेतों में आग लगा दो। ये सारी चीज़ें पहली बात तो शुरू से नहीं थी भारत में, ये तभी आई महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन लोगों को इस स्तर पे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि आतताइयों से लड़ने के लिए आपको ये सब करना पड़ा, उन्हीं से आपको सीखना पड़ा। वरना तो यहाँ संध्या होते ही हथियार डाल दिए जाते थे कि भाई अब कल आकर के लड़ेंगे। किसान की खेती नहीं उजाड़ी जाती थी भारत में। ये सब तो तभी हुआ जब यहाँ पर तुर्को मंगोल, तुर्क, अफगान, इनका सबका इन्वेजन हुआ, तब ये सब शुरू हुआ। और जो ये बात कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़े मार्केट रिफॉर्म्स किए थे इंडिया में और किसानों के लिए बहुत बड़ा उसने उपकार किया था, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी इतनी बड़ी थी, उसको सिर्फ आर्मी पे सारा उसका खर्चा होता था। एक कहावत है अर्थशास्त्र में कि वॉर इज़ वेरी बैड फॉर योर इकोनॉमी, युद्ध आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है जब तक कि युद्ध ही आपकी अर्थव्यवस्था को ना चलाता हो। वॉर इज़ वेरी बैड फॉर योर इकोनॉमी अंटिल एंड अनलेस वॉर इटसेल्फ इज़ एन इकोनॉमी फॉर यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी और हंगरी और ये सब जो डेवलप्ड देश हैं वेस्ट ईस्टर्न यूरोप के, जो अब डेवलप्ड है उस वक्त डेवलपिंग थे, इनमें क्योंकि जब वॉर होता था तो मिसाइल तो उस वक्त नहीं, लेकिन बम, अलग अलग तरीके के खाने पीने के यूटेंसिल्स जो सैनिक अपने साथ लेकर के आते थे, इन सब चीज़ों की मांग में बहुत बड़ी डिमांड पैदा होती थी। तो उस डिमांड को मीट करने में प्रोडक्शन बढ़ाया जाता था। जब प्रोडक्शन बढ़ता था तो मुनाफा बढ़ता था, क्योंकि फिर जॉब्स मिलती थी, है ना। तो इसी तरीके से वहाँ की महिलाएं भी मैन्युफैक्चरिंग में आई। पहले महिलाओं को वहाँ आज़ादी नहीं थी कि आप जा कर के कमाई करें। जब विश्व युद्ध दूसरा ख़त्म हुआ तो वहाँ पर पहली मूवमेंट जन्म ली जिसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों की डिमांड की कि क्योंकि जो पुरुष थे समाज के, वो तो चले गए थे लड़ने के लिए, महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग करती थीं ये यूटेंसिल्स वगैरह की, या सप्लाईज जो भी चाहिए होती थी। तो जब ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो पुरुष वापस आए। जब वापस आए तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए। यहाँ पे पहले से महिलाएं एम्प्लॉयड थी, तो महिलाओं ने अपना जॉब छोड़ने से मना कर दिया। तो एक चीज़ ये हो गई। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी आर्मी, जो कि उसने बहुत बड़ी बना रखी थी, उसको खाना देने के लिए उसके पास अनाज कम पड़ रहा था, इसलिए उसने एक मिनिमम कैपिंग कर दी कि कोई भी किसान इस रेट के ऊपर नहीं बेचेगा। तो ये सच्चाइयाँ हैं, ये सच्चाइयाँ इतिहास की। बच्चों को अंत सन बातें, राम पुनियानी भी ऐसी तरीके की फर्जी बातें करता है। तो एक देशभक्त में अब शिवाजी की बात करते हैं। शिवाजी स्वराज के उद्घोषक थे, हिंदवी स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज अपने ऊपर। ऐसा आदमी देशभक्त नहीं तो क्या है? आप हमको समझा दो।
कि अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या किसी ने भी, मुगल हो, अफगान हो, कोई भी हो, किसी ने ये चीज़ कही कि भाई जो आप जो प्रजा है वो अपनी स्वयं की मालिक है, इतनी ऑटोनॉमी किसी ने दी, इतनी लिबर्टी फ्रीडम किसी ने दी। इसीलिए इसी को लीडर कहते हैं। लीडर जो है पूरी दुनिया का लीडर नहीं होता है। लीडर पहले एक छोटे से कस्बे का लीडर होता है, फिर एक धीमे धीमे उसका एम्पायर बड़ा होता है। तो वो अपने जहाँ तक उसका एम्पायर, अब रानी लक्ष्मीबाई महाराज के लिए लड़ाई करने थोड़ी चली जाती, उनके पास ना संसाधन थे, ना वो वहाँ की लीडर थी, है ना। तो पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना सीखें और इन लोगों से, गिद्धों से बचें। नमस्कार।